Hello children, this is Sarika, your maths teacher, right? So in this video, I'll explain how to find the square roots by the division method, right? So this method is little difficult, so we'll make it easy, no problem. Just see here. If we have to find the square root of 2304, so how to find by division method, right? So for division method, you'll write it this way, जैसे हम divide करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, right? So first of all, first step is that you'll do the pairing of this from the last. Pairing आप यहाँ से start नहीं करोगे, you'll do the pairing from the last. आप last से pairs बनाओगे, right? Pairing is done from the right side towards the left, right? So we have done the pairing. Now first pair is 23. So we have to find a number जिसका like 5 5s are 25. 25 is greater than 23. We'll have to take 4. 4 4s are 16, right? Same number लेना है. 4 4s are 16. Right? 5 5s are 25, 2 2s are 4. Like we have to take the same number here and here, right? So 4 4s are 16. Aapko you have to subtract. So you'll subtract, then you'll get 7 from here. Now, when in normal division, we just note down only one digit in one step. But here, this is pair, right? ये pair में है, and collectively you have to note down in one step. एक ही step में ये इकट्ठा आएगा 04. So whatever there is in pair, you have to note down in that step only. Now the next step is जो आपका quotient है 4. 4 को आप डबल करो. डबल इन द सेंस मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? 4 2s are 8. जो यहाँ पे you have the quotient मतलब जो आपका आंसर है ऊपर, उसको डबल करो. डबल कैसे होता है? कोई भी चीज 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 2s are 8. So आपने 8 लगा लिया. Now you have to write here something and here also वो नंबर सेम होगा. लाइक अगर मैं I'll check first, I'll give you a hint. Here it's 4. अगर मैं 82 into 2 कर दूं तो 2 आता है. 2 2s are 4. लास्ट में यूनिट्स डिजिट में कब 4 आता है? 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है, और 8 मल्टीप्लाई 8 से 64 आता है. तो यूनिट्स डिजिट में these are the two numbers which gives us 4 in the units digit. Now here या तो यहाँ 82 आएगा 2 2s या फिर 8 आएगा, राइट? 82 2s तो बहुत छोटा नंबर होगा, राइट? 8 8 लगाएंगे हम, राइट? We'll put the same number 8 and 8 और मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 88, क्योंकि यहाँ 88 है और हमने 8 से किया, राइट? तो ये नंबर होगा 704. तो जब हमने किया we got the same number and we have got the answer 48. So square root of 2304 is 48. Right children? So I'll repeat this process again. Division method में first we'll write this here number जिसका आपको perfect square निकालना है, square root निकालना है, that is 2304, right? So you have to do the pairing from the last. ठीक है? last से आप pairing करेंगे. So starting से नहीं करेंगे pairing, last से start होगी. Like in this case, pairing मैं यहाँ से करूँगी. ये this is alone here now, right? So after doing the pairing, जो first pair है आपको उसको देखो. उसमें उसका like 4 4s are 16. How you will get the answer? Nearby, उससे छोटा आना चाहिए. 5 5s are 25. 25 हम लेते तो ज़्यादा होता, because here it's 23. तो 25 it will not work out. So 4 4s are 16 and just subtract. और ये जो आपको एक ही स्टेप में नोट डाउन करना है. Then आप उसको डबल करेंगे 4, जो आपका आंसर ऊपर आएगा यू विल जस्ट राइट द डबल ऑफ दैट. 4 2s are 8. अब वो 8 यहाँ लिखेंगे. अब आपको यहाँ एक डिजिट लगानी है और यहाँ एक डिजिट लगानी है, और वो सेम होनी चाहिए. दैट शुड बी द सेम डिजिट, राइट? सो अब मुझे हिंट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से. यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पे 4 है. किसके स्क्वायर से 4 आता है? 2 2s are 4, 4 आता है. 8 8s are 64, 4 आता है. तो मतलब या तो 8 होगा या तो 2 होगा. दिस वे यू गेट द हिंट. सो यहाँ 82 2s होगा या 88 8s होगा. तो 82 2s तो बहुत छोटा नंबर होता है, here it is 704. So 88 into 8 is 704. पूरा आ गया, और this is your answer. So the square root of 2304 is 48, right? So I'll do this one also here. It was 4 digit, that is 5 digit, right? आपको पता होना चाहिए. यहाँ तो दोनों पेयर में थे, यहाँ पे एक सिंगल भी रह जाता है, right? So pairing is done from the right side towards the left. आप पीछे को ऐसे पेयरिंग करते हुए आते हैं, राइट? नाउ हियर इज नंबर 5. तो 5 में हम क्या लगाएं? चेक करो. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9. 3 3s are 9 is greater than 5. तो 2 2s are 4 will work here. So 2 2s are 4. आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा आपका. अब आपका क्या रूल है? यू हैव टू कॉपी द पेयर इन वन स्टेप. पेयर में आपको क्या है? 33, राइट? अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? जो ऊपर आंसर है 2, उसका आप डबल करेंगे. 2 2s are
4, आपने 4 लिख लिया। अब आप एक नंबर यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे, वो सेम होना चाहिए, राइट। सो लेट अस चेक। अगर मैं लगाती हूँ यहाँ पे 4 4 जा, लेट मी चेक, रफ में मल्टीप्लाई करके चेक करो। 44 इंटू 4 क्या होता है? 4 4 जा 16, 4 4 16 17, ठीक है, ये ज्यादा नंबर है। 43 लेट अस चेक, 3 3 9, 3 4 12, ये आपको चेक करने पड़ेंगे रफ में, राइट। सो यहाँ पे आता है 129 जब आप 3 लगाते हो। सो लेट अस राइट हियर 3, राइट, आपका आ गया 129। now you'll subtract this here and you'll get 4, right? you'll copy that 61 here down, ठीक है, यहाँ से आपका 4 आ गया, 61 फिर पेयर में नीचे आएगा, राइट। सो आप इसको लिख दो। अब आपका क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन 2 था, उसका आपने डबल किया। नाउ द क्वेश्चन इज 23 का आपको डबल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 46, राइट। राइट, आपने 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 46। अब आपको एक नंबर यहाँ लगाना है, एक नंबर यहाँ लगाना है। अब यहाँ है 461, तो क्लियर हो गया, 1 है 461, 1 जा 461 and just subtract it and you get the answer 231. Okay children, I'll repeat this again. Division method, you can try the questions of 4 digit, 3 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, right? जो भी क्वेश्चन है उसके पहले, सबसे पहले the first step is to do the पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। पहले राइट से करो, आगे से नहीं करना है, पीछे से। पेयरिंग पेयरिंग, और ये सिंगल रह गया, राइट। आफ्टर डूइंग द पेयरिंग, जो फर्स्ट पेयर होगा, जैसे यहाँ 23 था और यहाँ पे 5 था, उसका देखो कि उससे छोटा नंबर किसके स्क्वायर से आता है। लाइक यहाँ 5 था, 2 2 जा 4, 2 2 सेम नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पे। सो 2 2 जा 4, ये छोटा था 5 से, 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाता। हियर 4 4 जा 16, अगर 5 5 जा 25 लें, दैट इज ग्रेटर देन 23। सो हियर 4 4 जा 16, उससे छोटा नंबर लेना है, और लगाने तो सेम ही नंबर है, डिफरेंट तो लगाने नहीं है। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, जो यहाँ से नंबर आ जाए, जस्ट नोट डाउन दैट पेयर, नेक्स्ट पेयर जो भी होगा। अब यहाँ से आंसर आया 1, नेक्स्ट पेयर था 33, जस्ट नोट डाउन दैट 33, राइट। सो नाउ अगेन, जब आपका क्वेश्चन यहाँ 4 था, उसको आपने डबल करना है, 4 2 जा 8, हमने डबल कर लिया 8। अब उसके बाद आपने यहाँ नंबर लगाना है कि 88 8 सा वो नंबर आ जाए। तो यू कैन चेक इन रफ, ठीक है। तो आइडिया कहाँ से लगता है? जब लास्ट ईयर बचता है 4 4 किस स्क्वायर से आता है? 2 या 8, तो यहाँ 2 लगना था या 8, ये नहीं कि आप सारे नंबर्स ही ट्राई कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट, राइट। सो ये लास्ट में जब बचता है तो आपको आइडिया हो जाता है। नाउ हियर यहाँ पे 133 था, अब ये लास्ट नहीं है, बीच में है, तो आपको आइडिया नहीं लगता बीच में, तो यू हैव टू चेक इन रफ। 43 3 जा 129, 44 4 जा तो 176 था, तो मैं 4 नहीं ले सकती थी। 43 3 जा 129, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचा। ऊपर से पेयर कॉपी आता है, नीचे यहाँ पे ये पेयर आया था, यहाँ पे ये पेयर आया था, तो नंबर्स कम इन पेयर्स, राइट। आ गया। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप में तो 2 था क्वेश्चन, आपने उसका डबल किया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जब आता है तो आपका क्वेश्चन 23 होता है, क्वेश्चन मीन्स ऊपर का आंसर, तो 23 का डबल करेंगे तो 46 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके डबल आता है, तो 46 आ गया। उसके बाद आपने एक नंबर यहाँ लगाना था, यहाँ लगाना था, पर यहाँ बहुत सिंपल था क्योंकि 1 था, तो हमें पता लग गया 46 1 था 46, 461 होता है, राइट। तो we got the answer. So answer of square root of 5331 is 231, right children? So I have completed this division method. Now we'll do some different type of questions also, जिसमें कि perfect square नहीं आता हो, तो आप कुछ multiply करते हैं, कुछ divide करते हैं इस division method में, और अगर आपका prime factorization method है, वहाँ पे भी आप कुछ divide और multiply करते हैं, इसमें आप subtract करते हैं, उसमें आप divide multiply करते हैं ना। Let us take the questions, right children? Okay children, now I have taken a question which is not a perfect square, like 1000 किसका perfect square नहीं होता है, 10 10 जा 100 था, right? So there are certain numbers जिसके आप perfect square नहीं होते हैं, right? So वो वाले नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि वो एक perfect square बन जाए, right? So we are going to do this question here. Find the smallest number by which it should be multiplied to get a perfect square number. और जब उसको वो नंबर मिल जाए तो वो किसका perfect square होगा, right? Okay, now 1000 का पहले आप LCM लोगे, you'll be dividing by prime factorization method से आप निकालोगे क्या है। So let us do that. 2 5s are 10, right? Now 2 से आप फिर करोगे, so you'll get 250, फिर आप 2 से फिर करोगे तो 125 आएगा। अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, you'll be dividing by 5, okay। 5 से आप करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 2 से 10, 5 5 से 25, फिर आप 5 से करोगे तो फिर 5 आएगा, 5 से करोगे तो 1 आएगा। These are the factors which you
गेट। अब ये देखिए आप तो पेयर में नहीं है, एक अकेला है, 5 पेयर में है, एक 5 देयर इज मिसिंग, राइट? सो व्हेन वी राइट हियर दीज नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को इस तरह से सॉल्व करते हैं, सो वी गेट ऑल द दैट प्राइम नंबर्स इन pairs. So, but here we are not getting it. We have a pair. We have a pair. We don't have two. 1 2 is missing and 1 5 is missing. So the question is that हम किस से मल्टीप्लाई करें? अगर हम इसको एक और 2 दे दें, अगर हम इसको एक और 5 दे दें, so ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसकी पेयरिंग हो जाएगी, राइट? सो तो we have to multiply by, we have to multiply बाय, हमने क्या क्या फैक्टर्स लगाए हैं, एक 2 लगाया, एक 5, सो 5 2 are 10, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10। जब इसको हम 10 दे दें, 5 और 2 दे देंगे, सो ये किसका नंबर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तब इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, एक 2 आएगा, तब ये यू कैन टेक आउट दिस वन फ्रॉम पेयर, दिस वन फ्रॉम पेयर एंड दिस वन फ्रॉम पेयर, सो आंसर विल बी 5 2 are 10, 10 10s are 100, राइट? सो वो जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1000 के साथ एक 2 और 5, जब वो नया नंबर विल बी गेटिंग द न्यू नंबर दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 100, मीन्स वो नंबर आएगा 100 का स्क्वायर, दैट इज ये नंबर, क्योंकि जब आप ये नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव रिटन हियर, सो यू हैव रिटन हियर, सो वी गॉट दिस। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, और किसका, 100 का। लेकिन 1000 was not a perfect square number, 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, राइट? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Find the smallest number by which it should be multiplied to get a, हमें we have to find the smallest number। हो सकता है एक 2 मिसिंग हो, 5 कंप्लीट हो, पेयर में हो, तो हम सिर्फ लिखेंगे कि we should multiply by 2। हो सकता है एक 5 मिसिंग हो, तो we can write that multiplied by 5, but here in this question 2 was missing and 5 was missing, 5 2s is 10, so we are supposed to multiply by 10। so after multiplying by 10 ये पेयर में हो गए कंप्लीट। उसके बाद लेट अस फाइंड, जब आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कि वो किसका स्क्वायर है, राइट? सो एक 2 ले लिया आपने, एक ये वाला 2 ले लिया, एक 5 ले लिया, 5। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी केम टू नो दैट कि जब उसको 10 मिल जाएगा तो वो 100 का स्क्वायर होगा, राइट? तो दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगर बाय चांस, राइट, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर दूं, डिवाइड, यहाँ था मल्टीप्लाई, राइट, लेट शुड बी डिवाइड, राइट, डिवाइड में कर देते हैं इसको, राइट? अगर डिवाइड का क्वेश्चन होता है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर, राइट? अगर यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइड का होता है, राइट, बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये डिवाइड का क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, राइट? ओके, अब ये है डिवाइड का क्वेश्चन, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि आंसर नहीं आने वाला है, राइट? लेट अस सी हियर व्हाट कम्स नाउ। हियर सी, अगर इफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन की, इसको हम किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 लगाओगे और एक 5 लगाओगे, ये 5 और ये कट जाएगा, राइट? आप क्या करोगे, अगर डिवाइड का क्वेश्चन आता है तो आप इनको रिमूव कर दो, डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड कर दो 2 खत्म हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो 5 खत्म हो जाएगा। सो ये 2 और 5 नहीं रहेंगे आफ्टर डिवाइडिंग, तो आप क्या बोलोगे, डिवाइड बाय 10, फिर आप डिवाइड का क्वेश्चन भी 10, ठीक है? ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था तो आपका डिवाइड का क्वेश्चन 10 बन गया, ये डिवाइड का बन गया, राइट? वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10, क्योंकि हमने वो 2 और 5 ने हमको निकाल दिया, उसको डिवाइड ही कर दिया। उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा फिर, तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, ये बचा, हमने वो 2 निकाल लिया, ठीक है? अब ये तो अंडर रूट में, अब इसका आंसर 2 आएगा, उसका आंसर 5 आएगा, तो फिर ये 10 का बनेगा, राइट? अगर आपने वो 5 2 10 निकाल ही दिए, मतलब आपने यहाँ डिवाइड का क्वेश्चन बना दिया, तो एक 0 कम हो जाएगी 1000 में से, आपके पास बचा 100, और वो 100 किसका स्क्वायर था, 10 का, राइट? सो आई रिपीट दिस डिविजन पार्ट अगेन। अगर क्वेश्चन डिवाइड में आता है कि आप इसको किससे डिवाइड करोगे, तो स्टेप्स आर सेम, आप पहले ये फैक्टर्स निकालोगे, इसमें डालोगे, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है, देन यू विल बी गिविंग प्रोवाइडिंग 2 and 5, यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस क्वेश्चन बाय 2 and 5। लेकिन इफ इट कम्स अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, आप उसको हटा दोगे, डिवाइड मीन्स डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इतना बचेगा, और इसमें आपने क्वेश्चन लिखेंगे वी आर डिवाइडिंग बाय 10, और जो हमारा नया नंबर आएगा 2 and 5 वो 10 का स्क्वायर होगा, और करके भी देख लो, 1000 डिवाइड बाय 10 इज 100, हाँ वो 10 का स्क्वायर होगा,
सो मल्टीप्लाई वाले में वो 10,000 हो गया था और डिवाइड वाले में उसकी 10 हट गई, राइट। 10 से डिवाइड किया तो 100 बन गया। सो आई होप दिस क्वेश्चन ऑफ डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको हम किस से मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई हम उससे करते हैं अगर पेयर में वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, एक 2 है उसको एक और 2 दे दो, एक 5 इनकम्प्लीट है तो उसको 5 दे दो, अगर 3 भी होगा, पेयर में नहीं होगा, एक सिंगल है तो उसको 3 भी दे दो। आपने जो जो मल्टीप्लाई करे हैं 2b 3b 5, उन सबको मल्टीप्लाई करो, वो आपका आंसर होगा कि आपने उससे मल्टीप्लाई किया। फाइनली तो आपने 3 फैक्टर्स या 2 फैक्टर्स लिए, यू विल गेट द आंसर दैट यू हैव मल्टीप्लाइड बाय दिस। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब वो बोल रहे हैं वो जो नया नंबर बना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट, स्क्वायर रूट ऑफ दैट, राइट। सो अब वो किसका स्क्वायर रूट हो गया? देखिए हमारा 10,000 हो गया था। फिर आप उसको पेयर में ले लो, एक बार और चेक कर लो। ये इक्वेशन डिवीजन का है। डिवीजन में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई तो करते नहीं है, हम जो जो कम पढ़ रहे हैं, जो जो सिंगल है, जो पेयर में नहीं है, उनको हम डिवाइड ही कर देते हैं। डिवाइड मतलब कैंसिल होना। तो 2 भी हटा दिया, 3 भी हटा दिया, 5 भी, अगर 3 हो क्वेश्चन में तो आप हटा देते हो। हटा देते हो आप बता दो 2 इंटू 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके बताओ कि इससे डिवाइड कर दो। अगर 2 और 5 ही है तो आप बोल दो 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब डिवाइड कर दिया, जो बाकी बचे पेयर में, उनका एक एक लेके बता दो कि वो आप किसका स्क्वायर रूट है, राइट। किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो दिस वे वी कन्वर्ट, राइट, एन इम्परफेक्ट जो स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको हम स्क्वायर बनाते हैं बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, राइट। ओके चिल्ड्रन, नाउ वील डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, children, now we'll do the last question, right? So we found the prime factors in the previous, right? Then we, in the prime factorization method, when you get the prime factors, right, that we have the question of division and multiply. By what factors we should multiply and by what factors we should divide. But in division method, जब हम division method करते हैं, so we have to subtract or add something to make it a perfect square number, right? So I have taken both the questions here. Find the least number that must be added. This is a question of addition and this is a question of subtraction. Same question को मैंने difference के साथ इसी में explain किया है कि अब अगर add का question आए तो क्या करना है, subtract का question आए तो क्या करना है, right? First I'll explain the subtraction. Whenever you divide this, pairing करेंगे आप, I've already explained the method. So ये हमने किया, 41 आ गया, right? आपका यहाँ पे remainder you got 69. इन सब्ट्रैक्शन, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन, आप किसको सब्ट्रैक्ट करें? तो आप सिर्फ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लो और जब रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ से नंबर इतना आ जाएगा एंड दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 41. आप चेक करो 41 से 1681 होता है. सो सब्ट्रैक्शन इजी इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू दिस. इसमें क्या है, जो रिमाइंडर होगा बस आप उसको लिख लो कि वो सब्ट्रैक्ट करना है और वही नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट. नाउ व्हाट अबाउट द एडिशन? एडिशन हम कैसे करते हैं? नाउ सेम ये डिवीजन मैंने यहाँ भी किया है, राइट. ये रिमाइंडर आपको आया है, इसमें रिमाइंडर का कुछ नहीं करना है, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपका ये जो 41 है इसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं आ रहा है, सम रिमाइंडर है, लेकिन उसमें अगर आप कुछ इस नंबर में कुछ ऐड कर दें, यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट. परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 41 का ना आए, फिर वो 42 का आएगा, उसके आगे वाला नंबर. सो व्हाट यू हैव टू डू, जो 41 है यहाँ पे जो भी नंबर हो, व्हाटएवर यू हैव इन द क्वोशिएंट, यू जस्ट टेक द नेक्स्ट नंबर, लाइक इट्स हियर इट्स 41, टेक 42 का स्क्वायर निकालो, दैट इज दिस. अब इस नंबर और इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, राइट. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू गेट 14 हियर, राइट. सो जब आपने 42 का स्क्वायर जो है ये होता है 41 का स्क्वायर जो है, राइट. यहाँ पे हमारे पास आया है लेकिन रिमाइंडर कुछ बच रहा है, सो वी कैन टेक 42 स्क्वायर और यहाँ पे देखो कि 1750 को अगर हम 14 प्रोवाइड कर दें तो नंबर बन जाएगा 1764. इफ वी प्रोवाइड 14 टू दिस, इफ वी एड 14 टू 1750, we'll get another number which is 1764 and which is a perfect square of 42, राइट. सो इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, एडिशन में हम क्या करते हैं, जो भी क्वोशिएंट है, व्हाटएवर वी हैव अ क्वोशिएंट, अगर आपका 29 क्वोशिएंट हो, आप 30 का स्क्वायर ट्राई करो. अगर 41 क्वोशिएंट है, आई ट्राई 42, उसके नेक्स्ट वाला नंबर उसका स्क्वायर निकालो, उस स्क्वायर को और इस क्वेश्चन को आप सब्ट्रैक्ट करो, जो ये नंबर होगा दिस is the number which you should add. So here 1750 में we should add 14. अगर हम इसमें 14 ऐड कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा, ये नंबर बन गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया 42 का. लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन में तो 41 का आ रहा था, ये परफेक्टली स्क्वायर आ जाता, लेकिन यहाँ बच गया रिमाइंडर 69. अगर वो रिमाइंडर 69 नहीं आता, वी इफ वी डिडंट फाइंड दिस रिमाइंडर, अगर वहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचता, सो
हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता 41 का. we would got a number which is a perfect square of 41, right? So उसको perfect square 41 का बनाने के लिए what we did, we just subtracted that remainder from the question. Question was 1750 and we subtracted 69, so we got a new number 1681 और जो कि perfect square अब 41 का होता है. So subtraction में तो वो 41 का ही square बनेगा, आप रिमाइंडर को माइनस कर दो. और जो ये एडिशन वाला है दैट इज 41. अगर आपका क्वेश्चन है आप 42 का स्क्वायर निकालो, उस स्क्वायर को और इस क्वेश्चन को आप सब्ट्रैक्ट करो, जो आता है वो आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें. मीन्स 1750 में यू हैव टू ऐड 14 to get 1764 which is a perfect square of 42. I hope both the questions of addition and subtraction, राइट, डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चंस में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें फैक्टर्स वी हैव, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम फैक्टर को कंप्लीट करना उसकी पेयरिंग, एंड वी हैव टू डिवाइड बाय द फैक्टर्स विच आर अलोन, सिंगल है उनको सो डिवाइड ही कर दो, उनको हटा ही दो वहां से, और फिर वो एक नया नंबर बनेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा. या फिर उनको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो उनको प्रोवाइड कर दो, एक एक जो कम पढ़ रहे हैं पेयर नहीं बन रहा है, देन यू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर आइदर बाय मल्टीप्लाई और बाय डिवाइडिंग. यहाँ पर या तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो 41 का स्क्वायर आ जाता है, राइट, और या तो फिर हम उसको उसके नेक्स्ट का भी फाइंड आउट 42 का स्क्वायर. 42 का स्क्वायर चेक कर लो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 14, तो इसका मतलब यू हैव टू ऐड 14 टू दिस. 14 ऐड कर लिया तो हमारे पास 1764 आ जाएगा और दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 42. सो दिस इज द वे हाउ वी by subtracting and adding we make that number which was not a perfect square हम एक नया नंबर बना देते हैं, that is a perfect square. So we have done the questions of multiplying, dividing, subtracting, adding to make a perfect square. So I hope the children now squares and square root chapter is clear. First I explained two methods. Let me recall the things. How to find the squares by column method and by diagonal method. Column method is only applied for 2-digit number, 3 के लिए नहीं होता. और जो डायगनल मेथड है वो 3, 4 एनी नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए हो सकता है, राइट. सो डायगनल मेथड में, अच्छा कॉलम मेथड में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं, 2ab और बी स्क्वायर लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी है ए है उसमें बी है आपका उसमें. Then in diagonal method what you do, if you have a 3-digit number, 3 का स्क्वायर होता है 9. So एक बड़े से बॉक्स को you have to convert that big square into 9 squares. अगर आपका 4-digit number है, 4 4 होता है 16. Then a big square is converted into 16 squares. ठीक है, फिर आप नंबर लिख देते हो, ऊपर को भी लेफ्ट में भी लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं डायगनली, जिससे मैंने सिखाया. You have to do that way. उसके बाद आता है स्क्वायर रूट फाइंड करना. स्क्वायर रूट वी कैन फाइंड आउट बाय 3 मेथड्स. बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑड नंबर्स, उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है, बड़े नंबर्स के लिए वो वैलिड नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, दैट इज नॉट कन्वीनियंट मेथड. देन सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स, फैक्टर्स निकल गए, पेयरिंग हो गई, पेयर में से एक बाहर निकाल लिया, आंसर आ गया कि दैट इट इज. उस प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में कई क्वेश्चंस आते हैं कि बाय विच नंबर यू शुड मल्टीप्लाई, बाय विच नंबर यू शुड डिवाइड, तो मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, राइट. देन comes division method. Division method से आप ऑलरेडी एक्सप्लेन क्या, आप पेयरिंग करेंगे राइट से, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, अगर यहाँ पे एक अकेला भी रह जाता है नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट. आफ्टर दैट यू हैव टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, आप ऑलरेडी एक्सप्लेन, राइट. इन डिविजन मेथड देयर इज अ क्वेश्चन लाइक बाय व्हाट नंबर इट शुड बी added and to make a perfect square and by what number it should be subtracted. सब्ट्रैक्टेड का तो सिंपल है कि जो आपका रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो एडिशन का है, एडिशन में आप क्या करते हैं, यू गेट अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से अगला नंबर का स्क्वायर निकाल के रख लो. स्क्वायर निकाला और इस गिवन क्वेश्चन से माइनस किया तो आपको पता चला कि इसमें अगर हम 14 लगा देते तो हमारे को ये आ जाता. So you have just found that 14 should be added to this to get a perfect number. 1764 is a perfect square number. किसका स्क्वायर है, perfect 42 का, जो कि 1750 नहीं था perfect square number. I hope this chapter is clear, children. Now work hard. My blessings are with you. Okay, all the very best. Okay, good. Thank you, children.